हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर 10, जो कि हम करेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल रूल्स। यानी आप इसमें जो है इतिहास के चैप्टर में आप मुगल साम्राज्य के जो विस्तार के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करोगे। ये टॉपिक कई मानने में हर एक क्लास के लिए बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जिसके सिलेबस में मुगल एम्पायर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर है। तो चाहे वो यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे सीबीएसई से पढ़ते हों, चाहे एनआईओएस के बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों, सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इसको आप अच्छे से समझिएगा और सोचिएगा, क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईओएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। चैलेंज द मुगल रूल्स इज अ कॉन्फ्लिक्ट एंड द negotiation. That is the most important here according to the Mughal Empire. Under Aurangzeb, the Mughal Empire reached its greatest territorial limits and it covered almost the whole of present day of India. But its design was marred by the popular revolt of their Jats, Satamins, and the Afghans, Sikh, and the Marathas. The Rajput emerged as an important support base of Mughal under the Akbar. And later on under Jahangir and the Shahjahan, however, under Aurangzeb, they started to the feeling is alienated and they gradually lost their position of administrative setup. The Marathas posed a major challenge to be a sovereignty of their Mughal under Aurangzeb. The Deccan start put up a stark resistance against the Mughal expansion plan. The northwest is a frontier and the resistance was also terrible as a support and the Mughal had to be suppressed to the disturbance, and there is a notice that is a post of the establishment and expansion of the Mughal Empire to the Mughal face resistance and had to be negotiated. There is a wall through the divorces is a mean to the struggle, and there is a will be provided to the very discussion on all this issue. The first year Rajput. The Rajput here, the Mewars was the only reason is the Rajputana had not is a comes is under the Mughals drive to the Akbar at the time. Jahangir followed a persistence policy to capture it. After a series of conflicts, Rana Amar Singh finally agreed to accept of Mughal sovereignty. All the territories taken from the Mewar, including to the fort of the Chittor, whereas returning to the Rana Amar Singh and their subsequently Jagir was the granted to his son as a Karan Singh. During the reign of the Jahangir and the Shahjahan, the Rajput generally continued to the friendly with the Mughals and held very high the mansabs. Shahjahan relied upon the Rajput soldiers from to the campaigns and the Deccan, their northern west. During the reign of the Aurangzeb, the Mughal relation with the Rajput suffered to the particularly over to the issue of the succession to their throne into the Marwar. Aurangzeb has an interference in the succession at a depth and his the support to the reverse candidate is antagonized to the Rajput. His occupation of the Jodhpur further put a dent on the Mughal-Rajput relation and the Rajput gradually got alienated from to Mughal rule.
In fact, absence of the powerful Rajput section in the nobility ultimately is provide to the determinantal of the Mughal control of the peripheral area, especially when it is come to the negotiations with the Marathas. The next year, Deccan. During the last year of Akbar and the earlier year of Jahangir, the Ahmednagar under to the Malik Ambar is started to the challenging to Mughal power. The Malik Ambar is a succeed in the getting a support to the Bazapur also. A number of expeditions were sent by the Jahangir but failed to be achieved any success. During the Shah Jahan is resigned, the Mughal confessed with the Deccan kingdom and Ahmednagar. Bijapur and Golconda was received. The Ahmednagar was first to be defected and the most of its territory were annexed into the Mughal Empire. By 1636, Bijapur and Golconda were also defeated, but these kingdoms were not annexed to the Mughal Empire. After the defeated rulers were pay of annual tribute and recognize a Mughal authority. For almost 10 years, Shah Jahan is captured his son Aurangzeb in the region. During the exam, he resigned to the struggle with the Deccan start to the Marathas become more intensive. And in fact, Aurangzeb spent the last 20 years of his reign in the Deccan fighting against them. By 687, the Deccan's kingdom of Bijapur and Golconda were annexed to the Mughal Empire. However, the time and money spent in the Deccan by the Aurangzeb proved a great drain to the Mughal Empire. And the next year, Marathas challenge. There is the most important here. Maratha challenge. The Maratha emerged in the Deccan is a vital force under Shivaji in the middle of the 17th century and began to challenge the Mughal authorities. Shivaji started his offensive operation in the 1656 and captured the is a principality of Zavil, and after some time Shivaji is raided the Bijapur territory, and in the 1659 the Sultan of Bijapur sent to the General Afzal and raided to the Bijapur territory, and in the 1659 the Sultan of Bijapur sent his general Afzal Khan to the capture of Shivaji, but Shivaji was too clever for him. Afzal Khan and killed him. Ultimately, in the 1662, the Sultan of Bijapur entered into the space of settlement with the Shivaji and acknowledged him as the independent ruler of the conquered territories. Shivaji now began to devastate the Mughal territories. Aurangzeb and sent the Satyendra Khan is a viceroy of the Deccan with a big army against the Shivaji and the territory of Prandhar in 1665 was signed between the two. Out of the 35 forts held by Shivaji, he agreed to the surrender 23 forts to be Mughals. The remaining 12 forts with the annual income on 1 lakh of huns were to be left the Shivaji. Shivaji was asked to pay a visit to the Mughal court at the Agra. But when Shivaji went there, he was ill-treated and taken to the prisoner and he managed to escape, reaching the Raigad in the 1666. From the onward, we waged a relentless is a struggle against the Mughals. Soon he conquered all the fort which he had surrounded to be a Mughals. In 1670, the plundered of Surat for the second time. In 1674, Shivaji made a Raigad his capital and celebrated his coronation and assumed the title of Chhatrapati. Shortly after this, he made a great expedition into the southern India and conquered Irazinji, Velar and the many forts of Karnataka. He died at the Raigad in the 1680 after the ruling for the only 6 years. In this short time, they founded the Maratha kingdoms and which dominated western India for a century and a half. Shivaji's successor was his son Sambhaji. The many Maratha chiefs did not be support of Sambhaji and extended help to the Rajarama.
and the other son of Shivaji. Shivaji has a two son, is a Sambhaji and the Rajaram. Thus, their son of Shivaji. There is support for the people. There is the Rajaram, but not support for the Sambhaji. The internal conflict began to Maratha power. Finally, Sambhaji was captured and put to death in 1689 by the Aurangzeb. And the Sambhaji was succeeded by the Rajarama, is the son of Shahu, was still young. The Rajaram is died in the 17th century, and he was succeeded by his minor son Shivaji III under to the regency of Tara by his mother. The Tara by his mother, the fell Aurangzeb against the Maratha was largely due to Tara by as energy and administrative genius. The Mughal, however, succeed in the dividing there is a Maratha into two rulers, comes one under Tarabai and other is a surrounded Sambhaji as a son Shahu. The Shahu for a long was is a Mughal court was released and he succeeded in the deposing Tarabai with the help of the Chitavavan Brahman is named to the Balaji Vishwanath. The next year, a challenge of the northern west. Akbar had a way to consider the Kabul, Gyanis, Kuthar is a land to the static frontier, and there is the capture of the Kuthar in 1595. The Quenadhar in the 1595. During the 17th century, the northern base is a Fontana was the mainly area of activity of the Mughals. Here the Rosanais were to the decisively is defeated by 1625 to 26. But Konadhar became a reason of conflict between the Persians and Mughals. After the Akbar's death, the Persians tried to the capture of the Quedhar but fell under Shah Abbas. 1. The Safavis ruler following this Shah Abbas is a one. In 1620 requested to the Jahangir to hand over to the Quadhar to him, but their letter is a decline to do so. In 1622, after the another attack, the Quandhar was captured by the Persians. The under Shah Jahan is a Kandhar only against come into the Mughal hand, but was captured by the Persian in the 1649. The struggle capture of Kandhar is a continually till the Aurangzeb and resigned to the Mughal got a title success. Shahjahan is a Valkha is a compound to keep a Uzbek is a tribe to under control fell is miserably and the Mughals lost a hug amount of the money and man in the confessed. During the resign of Aurangzeb, the Kandhar is the issue was the drop it and diplomatic relation with the Persians were revised. It is a quite and evident that the territory expansion of the Mughal Empire achieved under Akbar continued to be a core of the empire. Its further expansion due to Aurangzeb's resign was Deccan and in a small measure in the northern east region. And during this is a period the Mughal Empire had to the largest area. However, the beginning of the decline of the Mughal Empire also could be traced to the ruler of Aurangzeb. The breaking up of their association with the potent regional force like a Rajput and falling relationship with the declining state of the Marathas shocked the unity of stability of the Mughals Empire. Under this successor, the empire keep disintegrating. यहाँ पर जो हमारे अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है मुगल शासन के लिए चुनौतियाँ। देखिए मुगल शासन के लिए बहुत चुनौती थी, जहाँ से बाबर ने स्टार्ट किया वही औरंगजेब के जो है अंत तक जो है मुगल साम्राज्य की पतन सी हो गई। कहते हैं इसके बीच में बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बहुत से शासक भी हुए, चाहे वो हुमायूं हो, चाहे अकबर हो, शाहजहाँ हो, जहांगीर हो, चाहे औरंगजेब हो, सबने अपने अपने समय में बहुत ही कूटनीतियों का प्रयोग किया, लेकिन ये सफल रहा। लेकिन औरंगजेब जो था आखिरी रूप से जो है अपने स्वतंत्र को बचा रखा, उसके बाद कोई भी योग्य राज्य नहीं कर सका। इसी के अंतर्गत हमारा जो यहाँ पॉइंट आया है मुगल शासन की चुनौती और लड़ाइयाँ और संधि की बातचीत। कहते हैं औरंगजेब के अधीन मुगल साम्राज्य के अधिकतम प्रदेशी सीमाओं तक अपनी पहुँच बना ली थी और लगभग कहते हैं आधुनिक भारत कहे जाने वाले संपूर्ण क्षेत्र को जीत भी लिया था।
परंतु उसका शासन जटों और शतरंजमियों, अफगानी और सिखों और मराठों की आम बगावतों से परेशानी था। अकबर के अधीन राजपूत मुगलों की सहायता के एक महत्वपूर्ण आधार की तरह जो है उभरे और बाद में जो है जहांगीर और शाहजहां के अधीन भी हुए। परंतु औरंगजेब के अधीन उन्होंने खुद को जो है पराया अनुभव करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे प्रशासनिक ढांचे में उन्होंने अपना जो है स्थान भी खो दिया। औरंगजेब के अधीन मराठे के मुगलों की सत्ता को बहुत बड़ी चुनौती दी गई थी। कहते हैं औरंगजेब के लिए बहुत ही मुश्किल साम्राज्य था। दक्कन के प्रदेशों में मुगलों की विस्तार योजनाओं का कड़ा विरोध भी किया गया और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में भी कुछ समस्या वाले स्थान थे और मुगलों को जो है इन बाधाओं को दबाना भी पड़ा। और इस प्रकार हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य की स्थापना और इसके विस्तार की प्रक्रिया के दौरान मुगलों को विरोध का सामना करना ही पड़ा और विविध उपयोगों को सिद्ध नीतियों को अपनाकर अपने तरीके से समझौता करने पड़े। यहाँ हम उन सभी मामलों को संक्षिप्त में जानेंगे कि भाई किस प्रकार जो है यहाँ पर जो है मुगल साम्राज्यों ने अपनी जो है कूटनीति का उपयोग किया और किस प्रकार जो है उन्होंने समझौता किया। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट किसके अंतर्गत है। पहला पॉइंट आता है राजपूत के अंतर्गत। कहते हैं राजपूत ने मुगलों के नाक में दम कर रखा था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी। राजपूताना में जो मुवारा एकत्र ऐसा क्षेत्र था जो अकबर के शासनकाल के दौरान मुगलों के अधीन नहीं आ सका, लेकिन जहांगीर ने जीतने के लिए लगातार दबाव बनाए रखा और लड़ाई के एक लंबे सिलसिले के बाद राणा अमर सिंह ने अंत में मुगलों के आधिपत्य को मंजूर भी कर लिया। कहते मेवाड़ के जीते गए सभी प्रदेश चित्तौड़ के किले सहित राणा अमर सिंह को लौटा दिए गए और इसके साथ ही उसके पुत्र कर्ण सिंह को एक बड़ी जागीर भी दी गई। जहांगीर और शाहजहां के शासन के दौरान राजपूतों ने आमतौर पर मुगलों के साथ मित्रता का व्यवहार भी किया और बहुत ऊंचे जो है मान सवोक तक जो है काबिज भी रहे। शाहजहां के दक्कन और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों की लड़ाइयों के लिए जो है राजपूत सैनिक पर अधिक विश्वास था। औरंगजेब के शासन के दौरान राजपूतों के साथ जो है मुगलों के रिश्तों में जो है दरार सी भी आ गई थी, खास तौर पर जो है मेवाड़ा और राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के मामले में। कहते उत्तराधिकारी को समर्थन देने के कारण राजपूत नाराज हो गए और जोधपुर पर उसका कब्जा भी मुगल राजपूत संबंध के लिए एक झटका साबित हुआ और धीरे धीरे राजपूत मुगल शासन के अलग हो गए और असल में अभिजात और शक्तिशाली राजपूत क्षेत्र के अभाव में मुगलों के लिए चारों तरफ के क्षेत्र पर नियंत्रण रखने के काम में अंत में काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा, खास तौर पर तब जबकि उन्होंने मराठों को समझौता वार्ता करनी पड़ी। तो कहते हैं बहुत ही जो है यहाँ पर मराठों ने अपना जो है दिक्कत पेश किया सभी जो है मुगल एम्पायरों के समक्ष। उसके पश्चात हमारे समक्ष है दक्कन का क्षेत्र। देखिए दक्कन का क्षेत्र का भी अपना एक विशेष स्थान है। अकबर के अंतिम दिनों में और जहांगीर के आरंभिक दिनों में मलिक अंबर के अधीन अहमदनगर जो है मुगल ताकत की चुनौती देने शुरू कर दिया था। मलिक अंबर बीजापुर के समर्थन पाने में भी कामयाब हो गया था और शाहजहां के शासनकाल में अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंड के दक्कन नव साम्राज्यों में फिर से मुगलों के साथ लड़ाई शुरू हो गई थी और सबसे पहले अहमदनगर के पराजय किया गया और इसके अधिकांश प्रदेश को मुगल साम्राज्य के साथ जोड़ भी दिया गया था और 1636 तक आते आते बीजापुर और गोलकुंडा को भी हरा दिया गया था, परंतु इस साम्राज्य को मुगल साम्राज्य के साथ नहीं जोड़ा गया था और एक संधि पत्र बनाने के बाद यह निर्णय हुआ कि हराए गए शासक वारसी नजराना देंगे और मुगलों की सत्ता को स्वीकार भी करेंगे। लगभग 10 वर्ष के लिए शाहजहां ने अपने पुत्र औरंगजेब को इस क्षेत्र में नियुक्त भी किया था। औरंगजेब के शासनकाल में दक्कन प्रदेश और मराठे के साथ संघर्ष और भी गंभीर हो गया। असल में औरंगजेब ने अपने शासन के अंतिम 20 वर्ष दक्कन में लगातार युद्ध करते हुए व्यतीत किए, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। कहते हैं 1687 तक बीजापुर और गोलकुंड के दक्कनी साम्राज्य को मुगल साम्राज्य के साथ जोड़ भी दिया गया था, परंतु दक्कन में औरंगजेब द्वारा खर्च किया गया समय और धन और मुगलों के साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा अव्यय साबित हुआ, यानी बहुत काफ़ी जो है घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि 20 वर्ष तक दक्कन क्षेत्रों में लगे रहना औरंगजेब के लिए बहुत ही चिंता और बहुत ही जो है साम्राज्य के लिए नुकसान का सबब भी था। उसके पश्चात था मराठा। कहते हैं 17वीं सदी के मध्य में शिवाजी के नेतृत्व के अधीन मराठे दक्कन बहुत शक्तिशाली बल के रूप में उभरे
और उन्होंने जो है मुगलों के अधिकार को चुनौती देना शुरू भी कर दिया था। शिवाजी ने 1656 में अपनी जो है आक्रमक कार्रवाई शुरू भी कर दी और जवली का राज्य अपने अधित्व में कर भी लिया। कुछ समय के बाद शिवाजी के बीजापुर प्रदेश पर आक्रमण कर दिया और 1659 में जो है बीजापुर के सुल्तान को अपने जनरल अफजल खां के शिवाजी पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा, परंतु शिवाजी उसकी जो अफजल खां तुलना में बहुत चतुर निकले और उन्होंने उसकी हत्या भी कर दी। अंत में 1662 में बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के साथ एक समझौता किया जिसके तहत उन्हें जीते गए प्रदेश के स्वतंत्र शासक बना दिया गया। अब शिवाजी ने मुगल प्रदेशों को जो है नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया और औरंगजेब ने दक्कन के जो है सूबेदार शाहिस्ता खान को एक बहुत बड़ी सेना देकर शिवाजी के पास भेजा और उन दोनों के बीच जो है पुरंदर के 1665 में संधि पत्र पर हस्ताक्षर भी किए गए, जिसके तहत शिवाजी द्वारा जीते गए 35 किलो में से जो है 23 किले मुगलों के वापस करने के लिए वह तैयार भी हो गया। शेष बचे 12 किले जिनकी वार्षिक आय 1 लाख थी शिवाजी के पास छोड़ दिए गए। शिवाजी को आगरा के मुगल दरबार में आने का आग्रह भी किया गया, परंतु जब शिवाजी वहां पहुंचे तो उनसे दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें बंदी भी बना लिया गया। वे 1666 में बचकर निकल भागे और रायगढ़ पहुंच गए। तब से लेकर उन्होंने मुगलों के विरोध लगातार युद्ध जारी रखा और बहुत शीघ्र ही उन्होंने जो उन सभी किलों को वापस जीत लिया जो उन्होंने मुगलों के वापस किए थे और 1670 में उन्होंने जो सूरत के दूसरी बार लूट लिया। कहते 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी भी बना लिया और राज्य अभिषेक करवाने के बाद छत्रपति की उपाधि ग्रहण भी कर ली। इससे कुछ ही समय बाद उन्होंने दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा अभियान भी चलाया जो वेलावर में सिज्जी और कर्नाटक में कई जिले जीत लिए। 6 वर्ष तक शासन करने के बाद 1680 में उनकी जो है मृत्यु हो गई। इस छोटी सी अवधि में उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी जिसने जो है लगभग 1.5 शताब्दी तक जो है पश्चिम भारत में शासन भी किया। शिवाजी के उत्तराधिकारी थे उनके पुत्र संभाजी। बहुत से मराठा प्रमुखों ने संभाजी का समर्थन नहीं किया। शिवाजी के दूसरे पुत्र राजाराम की सहायता भी की और आंतरिक लड़ाई में मराठा शक्ति को कमजोर भी कर दिया। अंत में अंग्रेजेब द्वारा जो है संभाजी को पकड़कर जो है 1689 में जो है मौत के घाट उतार दिया गया। जो ही पहले पुत्र को जो है अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया और संभाजी के उत्तराधिकारी बने राजा राम। क्योंकि संभाजी के पुत्र बहुत छोटे थे इसलिए राजा राम को जो है उनका जो है उत्तराधिकारी बना दिया गया और 1700 में जो है राजा राम की मृत्यु हो गई, उनके उत्तराधिकारी बने। उसका माता ताराबाई के सिंहासन के अधीन उनके छोटे पुत्र शिवाजी तृतीय जो है मराठे का खिलाफ अभिजय की असफलता का मुख्य कारण भी बना। ताराबाई की ऊर्जा और उसकी प्रशासनिक प्रतिभा काफी जो है अंग्रेजेब के लिए सर का दर्द बन गया, क्योंकि ताराबाई अपनी कूटनीतियों से जो है अंग्रेजेब को बहुत ही परेशान किया। परंतु मुगल मराठों के 2 विरोधी गुटों में बांटने में कामयाब भी हो गया। एक ताराबाई के अधीन और दूसरा जो है संभाजी के पुत्र साहू के अधीन जो है अंग्रेजों ने 2 भागों में इसको विभक्त कर दिया। साहू जो लंबे समय तक मुगल दरबार में रहे थे, यानी साहू पहले से ही मुगल साम्राज्य में जो थे और छोड़ भी दिए गए थे। एक चितवापावन जो ब्राह्मण बालाजी विश्वनाथ की सहायता से उसने ताराबाई को शासन से हटाने में कामयाब भी हासिल कर लिया था। उसके पश्चात था उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पे जो है इनका क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कहते हैं अगर उत्तर पश्चिमी की बात करें तो काबुल जो है गजनी, कंधार और अकबर के जो है बहुत ही बिखरे हुए सीमांत प्रदेशों के रूप में समझा जाता है और इसलिए जो है 1595 में कंधार पर अपना कब्जा भी कर लिया गया था। 17वीं शताब्दी में उत्तर पश्चिमी सीमांत मुगलों के गतिविधियों का मुख्य क्षेत्र था और जहां 1625 से 26 तक रोशन नाई के तो पूरी तरह हरा दिया गया था, परंतु कंधार पारसियों और मुगलों के बीच आपसी लड़ाई का कारण भी बन गया। अकबर की मृत्यु के बाद पारसियों ने जो सफावी शासक शाह अब्बास प्रथम के अधीन कंधार को जीतने की कोशिश भी की, परंतु विफल रहे। इसके पश्चात जो है 1620 में शाह अब्बास जो है प्रथम ने जहांगीर के कंधार वापस उसे देने का अनुरोध भी किया, परंतु उसने ऐसा करने से मना भी कर दिया और 1622 में एक और आक्रमण करने के बाद पारसियों ने कंधार को जीत लिया। शाहजहां के अधीन कंधार एक बार फिर मुगलों के हाथों में आ गया, परंतु
जो है 1649 में फरासियों ने दोबारा इसे जीत लिया था और कंधार के जीतने के जंग औरंगजेब के शासनकाल तक चलती रही, परंतु मुगलों को इससे बहुत ही कम कामयाबी मिली। कहते इस मौकों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए शाहजहां को जो है बल्ख की लड़ाई में बुरी तरह हार देखनी पड़ी और मुगलों को इस लड़ाई में धन और जो है मानव बल का भारी नुकसान उठाना पड़ा। औरंगजेब के शासन के अधीन कंधार के मामलों को छोड़ दिया गया और पारसियों के साथ राजनीतिक संबंधों दोबारा जो है स्थापित किया गया। यहाँ पर जो मानचित्र आप देख सकते हो ये शिवाजी के अधीन क्षेत्र थे। शिवाजी देखा जाए तो हर क्षेत्र में जो है अपना दबदबा बना लिया था और इनके साम्राज्य काफ़ी क्षेत्रों में बखूबी बढ़ गया था, जो कि मैप भी दर्शा रहा है और मैप बिल्कुल बता रहा है कि शिवाजी का जो है क्षेत्र किस प्रकार विस्तार होता चला गया। यही चिंता का सबसे बड़ा विषय औरंगजेब के लिए था कि यहाँ पर शिवाजी के जो क्षेत्र था वो बढ़ता ही चला जा रहा था और औरंगजेब कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इसीलिए धोखे से जो है शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया, लेकिन शिवाजी को ये बात समझ में आ गया कि सिर्फ औरंगजेब धोखा ही दे सकता है, दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा सकता। फिर किले को छूटने के बाद वो जो है सदैव जो है औरंगजेब के खिलाफ जो है बहुत बड़ी कार्रवाई किया और फिर से जितने भी किले थे उसको जीत लिया, जो कि यहाँ पर मैप में दर्शाया गया है। इन सब कारणों से यह स्पष्ट हो गया है कि अकबर के शासन के अधीन मुगल साम्राज्य के प्रादेशिक विस्तार की नीति साम्राज्य की प्रमुख नीति बनी रही। औरंगजेब के अधीन दक्कन में और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में छोटे से पैमाने पर इसका अधिक विस्तार भी किया गया। उसके शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य के पास बहुत बड़ा क्षेत्र था, परंतु मुगल शासन के पतन के चिन्ह भी अंग्रेजों शासन में ही दिखाई देने लगे थे। राजपूतों जैसी संभावित प्रादेशिक ताकतों के साथ संबंध टूटने और दक्षिणी प्रदेश और मराठा के साथ संबंध में आई खटास ने मुगल साम्राज्य की एकता और स्थिरता को हिलाकर रख दिया। उसके उत्तराधिकारियों के अधीन साम्राज्य में जो है विघटन होता रहा था, जो कि बहुत काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उसके उत्तराधिकारी में हमेशा जो है विघटन की जो है देखने को मिले। लेकिन अकबर ने जो है इसको बहुत काफ़ी जो सशक्त बनाया था, लेकिन उसके जो जितने भी उत्तराधिकारी हुए वो इन सब चीज़ों में सशक्त नहीं हो सके। तो ये सारी बातें जो है मुगल की एम्पायर के लिए एक चुनौती के रूप में नज़र आती है। कहते दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे का चैप्टर और भी महत्वपूर्ण है, तो अगला जो वीडियो देखना मत भूलना। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलना है। जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चों तक पहुँचाने में आपने तिरपान सेंटर का सहायता करना है। और एक इम्पोर्टेंट बात ये रहती है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, आपका दायित्व हो जाता है, नहीं तो अगला वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा और अगले वीडियो का जो है देखने से अनभिज्ञ हो जाइएगा। तो इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ही आपके कल्याण में है।